Hello guys, and welcome you all. Welcome back in our next session, that is exercise 1.4. That is what we have studied in the last lecture. We have seen question number 1 of this exercise, and now we are going to start the question number 2 of exercise 1.4. We are studying the derivatives, and this is the second last topic of derivatives, in which we are just studying the examples based on that particular rule known as rule for derivative of parametric functions. There are the two different functions again. X is equals to cosec square of theta, y equals to cot cube of theta. What we have to do, we have to find out the derivative of this particular function at theta is equals to pi by 6, at theta equals to pi by 6. Very simple way is that what we have to do, we have to differentiate both the functions separately with respect to theta, because x and y both are the functions of theta. So first of all we have to differentiate both the functions with respect to theta, and then by using rule for derivative of parametric functions we have to find the solution of this particular function, that means dy by dx. Okay, let's continue. So given, what is given to you? X equals to cosec square of theta and y is equals to cot cube of theta. X equals to cosec square of theta and y is equals to cot cube of theta. So differentiate with respect to theta. Okay, x is the differentiable function of theta. So dx upon d theta is equals to cosec square of theta, x raised to n, that is 2 cosec theta into derivative of cosec theta is, that is minus cosec theta into cot theta. कुछ नहीं किया है हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के मुताबिक उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है. x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, x रेज टू n था, सो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा. सो 2 कोसेक थीटा, बट दिस इज द कंपोजिट पार्ट अगेन, x रेज टू n, सो कोसेक थीटा इज कंपोजिट पार्ट. सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट पार्ट इज माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. सो dx अपॉन d थीटा, दैट इज माइनस 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा. ओके, कोसेक इंटू कोसेक इज कोसेक स्क्वायर थीटा. Also y is equals to cot cube of theta, therefore dy upon d theta is equals to, it is 3 into cot square of theta, isn't it? X raised to n, n into x raised to n minus 1. Again cot theta is the composite part, derivative of cot theta is minus cosec square of theta. So we will get dy upon d theta, it is minus 3 cot square theta into cosec square of theta. It is equation number 2. We have find out the derivative separately with respect to theta, that means dx by d theta as well as dy by d theta. Now we have to use the rule for derivative of parametric functions. So dy by dx equals to dy by d theta divided by dx by d theta. We have not mentioned here by using rule for derivative of parametric functions, that is no need to represent there, because as early as possible we have to reach at the answer. So there is no need to represent that particular line by using rule for derivative of parametric functions, or else. Okay, dy by d theta, dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta. So from equations 1 and 2, from equations 1 and 2, in the equation second we have dy by d theta. So dy by d theta is minus 3 cot square theta into cosec square theta divided by, what is dx by d theta? Minus 2 cosec square theta into cot of theta. Minus minus will becomes plus here, cosec square theta and cosec square theta will get cancelled. One of the cot theta out of the cot square theta is cancelled. So what we will get? We will get dy by dx is equals to 3 by 2 into cot of theta. This is the derivative of y with respect to x, but this derivative we have to find out at the point x, theta is equals to pi by 6, and therefore dy by dx at theta equals to pi by 6, it is equals to, this 3 by 2 is the constant, cot of theta is pi by 6. and cot of pi by 6 means cot 30.
cot 30, cot pi by 6 means cot of 30, pi by 6 means 30. So cot 30, cos 30 अपॉन sin 30, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 अपॉन sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, isn't it? So √3 will be the value. So that is equals to 3/2 into √3, and that is your derivative at theta equal to pi by 6, 3/2, or you can say 3√3 upon 2. That can also be written as 3√3 upon 2. That is the derivative of this particular function at theta equals to pi by 6. ठीक है, आप इसका नोट बना लीजिए, write down. Let's continue with the second example. That is x is equals to, again we have given, what is given, x is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube of theta. Again this is the parametric function of theta, we can say both x and y depends on theta, a is the constant there. So we have to find out the dy by dx at the point x theta equals to pi by 3, isn't it? We have to find out derivative of this particular function at theta equals to pi by 3. So सबसे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट with respect to theta. So what we will get? We will get dx by d theta is equals to a into x raised to n. So 3 cos square theta and derivative of cos theta is minus sin theta. हमें तो पता है ना डेरिवेटिव क्या है, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो 3 minus 1 will be 2 and derivative of composite part, that is minus sin theta. So dx upon d theta it is equals to minus 3a sin theta into cos square theta. Equation number 1. Now y is equals to a sin cube theta. So dy by d theta equals to, again a is the constant, x raised to n के अनुसार 3 sin square of theta and derivative of sin theta is cos theta. So what will be derivative? So dy by d theta is equals to 3a cos theta into sin square of theta. Equation number 2. So therefore dy by dx is equals to, क्या है हमारा रूल, that is dy by d theta divided by dx by d theta. So from equations 1 and 2 again हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से dy by d theta और dx by d theta का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 3a cos theta into sin square theta divided by minus 3a sin theta into cos square of theta. ठीक है, सो 3a यहाँ पे भी 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ये साइन स्क्वायर में से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर में से भी एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल बी dy by dx देन, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन अपॉन कॉस इज tan theta. Therefore what dy by dx at the point theta is equals to pi by 3, that is equals to minus tan of pi by 3. Tan pi by 3 means tan 60, that is sin 60 upon cos 60. Sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, so that value will be √3. ठीक है, and that is what the answer is. okay, इसका भी आप आपके नोटबुक में स्क्रीनशॉट बना लीजिए या तो फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए. चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट एग्जांपल है, इफ x इक्वल्स टू a इंटू रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एंड व्हाट वी हैव टू शो दैट dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स. देखिए एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ठीक है ना. चलिए हम उसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले गिवन x इज इक्वल्स टू a इंटू रूट ऑफ sec theta minus tan theta, so which can be written as x upon a is equals to root sec theta minus tan theta.
इसको अगर स्क्वायरिंग कर देंगे हम, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan theta, equation number 1. Also y is equals to a into root of sec theta plus tan theta. सिमिलर प्रोसेस अगर इसको करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2. सो स्क्वायरिंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा. ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, वहाँ पे राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लिकेशन ले लिया है. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए रेज टू 4 इट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा. व्हाट इज दिस? दिस इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी. सो व्हाट वी विल गेट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रेज टू 4. एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए रेज टू 4. बहुत सिंपल एग्जाम्पल मिल गया हमें, जो हमें दिया था रूट के फॉर्म में उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रेज टू 4. इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. सो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई. What we will get, dy by dx is equals to minus y upon x and hence proved. यही तो हमें प्रूव करना था, कुछ नहीं किया हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका डिफ्रेंसिएशन ले लिया तो हमें मिल गया dy by dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स. ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स. सो यही हमें शो करना था. ठीक है, इसका भी आप नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में. इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सीधे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे को, आप में से किसी को ये एडजस्टमेंट पता नहीं चली, डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर आपने ले लिया तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे वो देखेंगे एक बार. देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है भाई, रूट का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू, अभी डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा tan थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज सेक स्क्वायर ऑफ थीटा. कुछ नहीं, आपको पता नहीं है, वो जो मल्टीप्लिकेशन किया, स्क्वेयरिंग एंड मल्टीप्लाइंग जो किया हमने, वो पता नहीं है आपको, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे. अगर आपको वो चीज़ पता नहीं है और सीधे डिफ्रेंसिएशन आपने ले लिया तो भी गलत नहीं होने वाला है, तो भी आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, थोड़े 1-2 स्टेज बढ़ेंगे आपके, टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन फिर भी आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. देखिए हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है ना. सो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये a है, दोनों में सेक थीटा एज अ कॉमन फैक्टर. क्या बच गया यहाँ पे बच गया tan थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा. सो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a सेक थीटा, इसको हमने -1 कॉमन निकाल लिया या तो फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये a सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा. ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा. अभी ये सेक थीटा माइनस tan थीटा जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a सेक थीटा इंटू रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा. वन ऑफ द स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल. इसका वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा रूट में a रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसका वैल्यू है x. सो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस
x बाई 2 इंटू सेक थीटा, इक्वेशन नंबर 1। देखिए इसका वैल्यू तो है x, a सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो गया x, ये माइनस सेक थीटा अपॉन 2 एज इट इज़, ठीक है ना। इसका वैल्यू हो गया x माइनस एज इट इज़, ये रूट का वैल्यू हो गया x सेक थीटा अपॉन 2 एज इट इज़, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। चलिए सिमिलरली ऑल्सो y इज इक्वल्स टू a इंटू रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, सो dy बाई d थीटा इज इक्वल्स टू अगेन a इंटू 1 अपॉन 2 रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन सेक थीटा का डेरिवेटिव फिर से सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, सो व्हाट वी विल गेट dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a सेक थीटा इंटू द ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। जो हमने यहाँ पे किया था सिमिलर स्टेज, इसको भी रिप्लाई कर देंगे, रिपीट कर देंगे। dy बाय डी थीटा वी विल गेट a और रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू a रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये रूट कैंसिल कर दिया हमने, सो dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू यस y अपॉन 2 इंटू सेक थीटा, इक्वेशन नंबर 2, एंड देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। चलिए dy बाय डी थीटा का वैल्यू क्या है, ये है y अपॉन 2 इंटू सेक थीटा अपॉन माइनस x अपॉन 2 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा विल गेट कैंसिल, 2 विल गेट cancel, what we will get, again we will get dy by dx is equals to minus y upon x, and that is your answer। फिर से हमने अलग मेथड से एग्जाम्पल को सॉल्व किया, फिर भी हमारा डेरिवेटिव माइनस वाई अपॉन एक्स ही आ गया। सो हमने ये शो कर दिया एग्जाम्पल कि अगर x इक्वल्स टू a इंटू रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा, y इक्वल्स टू a इंटू रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे दोनों मेथड से, ठीक है। इसका भी नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में। चलिए एक और एग्जांपल हम लेंगे। गिवन x इक्वल्स टू ई रेस टू साइन ऑफ 3t, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू कॉस ऑफ 3t। इस एग्जाम्पल को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है ना। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3t एंड log ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3t। हमें पता है, क्या पता है, e रेस टू x एंड log x आर एक्सपोनेंशियल इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। हमें पता है इफ a रेस टू x इक्वल्स टू m इट विल गिव यू log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, इसको हमने लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दिया, बस उसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये log x टू द बेस e इज इक्वल टू साइन 3 एंड log y टू द बेस e इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3t। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो t है, ठीक है ना। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, साइन 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू कॉस ऑफ 3t, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, इट इज़ माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 3t, बिकॉज कॉस 3t का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t और 3t कंपोजिट पार्ट है, सो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया और डेरिवेटिव भी उसका फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3x इंटू कॉस 3t एंड dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू
माइनस 3y साइन 3t, ठीक है। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यस, बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt का वैल्यू क्या है, माइनस 3y इंटू साइन 3t अपॉन 3x इंटू कॉस 3t। देखिए dy बाय dt का जो वैल्यू था माइनस 3y साइन 3t था, dx बाय dt का जो वैल्यू था 3x कॉस 3t, 3 विल गेट कैंसिल। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे माइनस y इंटू साइन 3t का वैल्यू है log x अपॉन कॉस 3t का वैल्यू है log y, जो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। कितना इजी एग्जांपल था, लेकिन हमें एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए। अगर ये एडजस्टमेंट्स पता नहीं हो, डायरेक्टली आपको सॉल्व करना हो, देखिए हम उसका ऑप्शनल मेथड भी सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू ई रेस टू साइन 3t। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। आपको एडजस्टमेंट्स पता नहीं है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या सॉरी t, बिकॉज t इज द पैरामीटर, सो dx बाय dt। ई रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x इटसेल्फ, e रेस टू साइन ऑफ 3t, अगेन साइन 3t कंपोजिट पार्ट आ गया, सो साइन 3t का डेरिवेटिव 3 इंटू कॉस ऑफ 3t, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 cos 3t इंटू ई रेस टू साइन 3t। इक्वेशन नंबर 1। dy बाई dt क्या आ जाएगा भाई, dy बाई dt इज इक्वल्स टू, सॉरी सबसे पहले तो y लेना पड़ेगा हमें, y इज इक्वल्स टू ऑल्सो, हाँ, y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस ऑफ 3t, सो व्हाट विल बी dy बाई dt देन, dy बाई dt इज माइनस 3 साइन 3t इंटू ई रेस टू कॉस 3t, ठीक है ना। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे वहाँ पे cos 3t है, तो cos 3t का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन 3t, अगेन 3t कंपोजिट पार्ट है, उसका डेरिवेटिव माइनस 3, सो माइनस 3 साइन 3t इंटू ई रेस टू cos 3t, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इट इज dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 साइन 3t इंटू ई रेस टू कॉस ऑफ 3t डिवाइडेड बाय 3 cos 3t ई रेस टू साइन 3t, ठीक है ना। सो ये 3 विल गेट कैंसल। यहाँ पे ई रेस टू कॉस 3t का वैल्यू क्या था, वो तो y था, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू ई रेस टू कॉस 3t का वैल्यू हो गया y इंटू साइन 3t अपॉन x इंटू कॉस 3t। अभी ई रेस टू साइन 3t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x इक्वल्स टू साइन ऑफ 3t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3t, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमने लॉगरिथमिक में ला के रख दिया। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमने लॉगरिथमिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो साइन 3t का वैल्यू हो गया log x, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यस इट इज माइनस y log x अपॉन x log y, एंड अगेन दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। हमने वहाँ पे फिर से एक बार उसको प्रूव कर दिया, दो अलग अलग मेथड्स से, ठीक है। एक ही एग्जांपल है, जो मेथड आपको इजी लगे उसके साथ आप सॉल्व करना पसंद करेंगे। आपको कम से कम टाइम में आंसर मिलना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। मेथड कोई भी हो, आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। आप इसका भी नोट आपके नोटबुक में बना लीजिए। चलिए हम थर्ड एग्जांपल लेंगे। x इक्वल्स टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। देखिए x इक्वल्स टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। अगर हम ठीक से देखेंगे तो बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर करेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू व्हाट we will get t plus 1 upon t minus 1 into t minus 1 upon
t प्लस 1। देखिए दोनों जो टर्म्स है एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, सो पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। अभी इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा आपको? x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इट इज इक्वल्स टू 0। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1, इट विल गिव यू x इक्वल्स टू 1 अपॉन y। सही बात है, x इक्वल्स टू ये y अगर दोनों बाजू में y से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन y हो जाएगा। सो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। चलिए, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0। ये y अगर ट्रांसफ़र कर देंगे सो क्या मिल जाएगा आपको? वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एंड आई थिंक that is what you have to prove, y square plus dy by dx that is equals to 0। so हमने वो एग्जाम्पल वहाँ पे प्रूव कर दिया। इसका नोट आप बना लीजिए आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ x is equals to साइन इनवर्स ऑफ e raised to t। देखिए x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e raised to t and y is equals to √1 minus e raised to 2t, देन शो दैट साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए हम इसको प्रूव करेंगे अभी, ठीक है ना। सो गिवन x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी, ए क्या हो जाएगा फिर? साइन एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू टी, ठीक है। ऑल्सो y इज गिवन एज root of 1 minus e raised to 2t, so it is equals to root of 1 minus e raised to t bracket square, so y is equals to root of 1 minus what is e raised to t, that is sin x bracket square। e raised to t का वैल्यू क्या है? sin x है, so 1 minus sin x bracket square, so y is equals to root of क्या हो जाएगा वो? 1 minus sin square of x, so y is equals to root of cos square x। root cos square x means y is equal to cos x। so differentiate with respect to x, so क्या मिल जाएगा आपको? dy by dx is equals to derivative of cos x is minus sin x and hence it will give you sin x plus dy by dx, it is equals to 0 and that is what you have to prove, hence proved। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसका भी नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में आप, बहुत इजी एग्जांपल था। क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे जिसमें कि डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप है, एक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन, ठीक है ना। सो अगर हम समझ लो y ए फर्स्ट फंक्शन है, सो x इज द अनदर फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई dx। सही बात है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। अभी ये जो फंक्शंस है डायरेक्टली फंक्शंस गिवन है, आपको वेरिएबल्स उनके लिए कंसीडर नहीं किए हुए। सो हम क्या करेंगे, इसको अगर u मान लेंगे, इसको अगर v मान लेंगे, सो differentiate x into sin x means differentiate u with respect to tan x means with respect to v। differentiate u with respect to v means अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें du अपॉन dv फाइंड करना पड़ेगा। सो इतना सोचने के बाद आपको एक एग्जाम्पल वहाँ पे सॉल्व करते समय कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ लेना है फर्स्ट जो फंक्शन है उसको हमने u कंसिडर करना है, सेकेंड जो फंक्शन है उसको हमने v कंसिडर करना है। सो कंसिडर क्या कर लेंगे, सबसे पहले u इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स एंड v इट इज इक्वल्स टू tan x। u और v दोनों फंक्शंस हमने कंसिडर कर लिए।
So both are the functions of x. So differentiate with respect to x. क्या मिल जाएगा आपको? du upon dx equals to x as it is, derivative of sin x is cos x, plus sin x as it is, derivative of x is 1. So du upon dx is equals to x cos x plus sin x, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. also v क्या है आपका? tan x है. so dv upon dx, because v is also the function of x, so dv upon dx is tan x का डेरिवेटिव आएगा sec square of x, इक्वेशन नंबर 2. एंड therefore du upon dv, यहाँ पे भी कौन सा रूल हमने यूज कर दिया? हमने रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज u एंड v आर द टू डिफरेंट फंक्शंस, बोथ डिपेंड्स ऑन x इज द थर्ड वेरिएबल. ठीक है ना, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, सेम वेरिएबल पे डिपेंड है, सो वो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं और वो वेरिएबल जो है उनका पैरामीटर है. यहाँ पे u भी डिपेंड्स ऑन x, v भी डिपेंड्स ऑन x, so x is the parameter of u and v, and u and v are the two different functions depending on the same variable, so we have to use the rule for derivative of parametric functions. du upon dv, it is du upon dx divided by dv upon dx. So from equations 1 and 2, du upon dv is equals to, इक्वेशन 1 अगर कंसिडर करेंगे वहाँ पे du by dx है, उसका वैल्यू है x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx क्या है वहाँ पे? sec square of x, and that is the derivative of x into sin x with respect to tan x. कुछ नहीं है, खाली हमें वहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को एक वेरिएबल मान लेना है, और वेरिएबल मानने के बाद हमें उनको रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस यूज करके सॉल्व करना है. ठीक है, इसका भी नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में. फिर से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे उसी टाइप का. डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. चलिए फिर से कंसीडर, फर्स्ट फंक्शन को u मान लेंगे. u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी देखिए, ये जो फंक्शंस है सीधे सीधे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते. उनका जो एंगल है, tan इनवर्स का जो एंगल है, यहाँ पे भी सेक इनवर्स का जो एंगल है, उसमें x कुछ तो सब्स्टिट्यूशन आपको लेना पड़ेगा. ठीक है ना, इट इज़ द डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशंस. x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने जब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे थे उसमें देखा था, अगर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x इक्वल्स टू आइदर साइन थीटा और x इक्वल्स टू कॉस थीटा. दैट इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन इज. सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू सपोज साइन थीटा, एंड देयरफॉर थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, सो u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यस, x इज sin theta upon root of 1 minus sin square of theta. So u is equals to tan inverse of sin theta upon root cos square theta. U is equals to tan inverse of sin theta upon cos theta, and sin upon cos is u is tan इनवर्स ऑफ tan थीटा. सो यहाँ पे तो आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो थीटा हो जाएगा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x. सो u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, एंड देयरफॉर du अपॉन dx इज इक्वल्स टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए कितना बड़ा एंगल था. हमने क्या किया, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन उसको बहुत सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्टली थीटा आ गया. थीटा का वैल्यू जो था वो क्या था हमारा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टेकन, du by dx वी हैव टेकन देयर, दैट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऑल्सो हम क्या करेंगे, अभी v लेंगे. v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1. हमें पता है
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज cos ऑफ 2 थीटा। हमने देखा था डबल एंगल फार्मूले में cos थीटा के रिजल्ट्स में। सो सब्स्टिट्यूट x is equals to cos theta, so theta will be cos inverse of x. So what will be v? V is sec inverse of 1 upon 2 into x square, that is cos square theta minus 1. सही बात है, क्या किया हमने यहाँ पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। देर आर 4 रिजल्ट्स ऑफ cos थीटा, ठीक है ना, cos 2 थीटा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी cos 2 थीटा ही आएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर भी cos 2 थीटा ही आएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर भी cos 2 थीटा ही आएगा। और 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, फिर भी वो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा ही हो जाएगा। इसके रूल्स यूज करके हमने वहाँ पे 1 अपॉन cos 2 थीटा लिख दिया। सो इट बिकम्स सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 थीटा। फिर से एक बार वहाँ पे आ गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। सो अगेन differentiate with respect to x, what we will get, dv by dx is equals to minus 2 upon root of 1 minus x square। du by dx हमें मिल गया, dv by dx हमें मिल गया। हमें क्या करना है, differentiate this means differentiate u with respect to v, therefore du upon dv is equals to, what is the rule, du upon dx divided by dv upon dx, and therefore from equations 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों के वैल्यूज वहाँ पे हैं। du by dx क्या है वैल्यू, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, du by dv is equals to 1 upon root 1 minus x square into root 1 minus x square upon minus 2, बिकॉज ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर पे चला जाएगा, ठीक है। सो रूट रूट विल गेट कैंसिल, सो वी विल गेट द आंसर एज du अपॉन dv इट इज माइनस 1 अपॉन 2। सो हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट से वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमें आंसर आ गया माइनस 1/2। इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। सो हमने क्या कर दिया, हमने रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए हैं। एक्सरसाइज में वहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में हमने 3-4 एग्जांपल्स एज अ सैम्पल वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के ले लिए हैं। आप लोग ने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के जो सभी क्वेश्चंस है वो आपको फिर से एक बार सॉल्व करने हैं आपकी नोटबुक में एज अ होमवर्क, ठीक है। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, कंपोजिट फंक्शंस से लेकर पैरामेट्रिक फंक्शंस तक। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be continuing with rule nth order derivatives, means higher order derivatives. So second order derivative, third order derivative and so on. We have to find out the successive differentiations of the given functions. That is the topic higher ordered derivatives, that we will continue in the next lecture. Till then, all the best to all of you. Thank you very much. Thank you.